Hello, class 10th. Today, through this video, I am going to detail your part 2, that is your lesson number 6, the 100 dresses, means the 100 dresses part 2. And today's lesson, I'm going to detail, or I'm going to explain it through this PPT, through the help of this PPT. So I hope you will enjoy, and it will be really helpful to understand the whole lesson. Okay. So actually this lesson number 6, the 100 dresses part 2, it is only the continuation with the previous chapter. Okay. The story is a continuation of the story that we have read in the lesson number 5. वही स्टोरी है, उसी को कंटिन्यू किया गया है. और इसमें जो पहली स्टोरी आपने देखी लेसन नंबर 5 में, दैट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. आई थिंक यू हैव रिकग्नाइज्ड द थीम वेरी वेल, कि कैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कई बार बच्चों को या कैसे फेस करना पड़ता है. और ये जो पार्ट 2 है, दिस इज़ बेस्ड ऑन ऑन फॉरगिवनेस, ऑन रिपेंटेंस, कि अगर आप कोई अननोइंगली भी कोई मिस्टेक कर देते हो, और जब आपको उसको रियलाइज़ होता है, सो हाउ डू यू वांट टू रिपेंट ऑन दैट, एंड हाउ डू यू वांट टू रेक्टिफाई दैट. ठीक है, आप उसको कैसे फिर करेक्ट करना चाहते हो. ओके, सो दिस इज़ द थीम ऑफ दिस पार्ट 2, and part 1 is the racial discrimination. Fine. So the first slide we have used, it shows you many of the dresses. This purpose is only to relate the different kind of dresses that was drawn by Wanda herself. ठीक है, तो आप इन पिक्चर्स को वहाँ से रिलेट कर सकते हैं, इस वजह से ये पिक्चर्स यहाँ पे हमने शो की है. Okay, the second slide shows some of the characteristics of Wanda. She is a polished girl, lovely, sensitive, artist, reserved, generous, introvert. I will not explain that too much, because you are very much aware all these qualities. We have detailed it in our first video. And another important character is Peggy. She is very fashionable, rich, cheerful. Okay, and the third character, that is Maddie. Okay, so Maddie is very sympathetic, kind, but she is not that kind of courageous girl. Okay, we can say she is a kind of she is a kind of timid kind of girl. ठीक है, जिसको हम courageous नहीं कह सकते. तो और भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, ये आप इसको आराम से देख लेना. वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अपलोड द वीडियो थ्रू द व्हाट्सएप, एंड समटाइम it mars also the quality of the video. The picture is not clear there after sending it through the WhatsApp. This is here about the author Albossor Esther, and she is a very renowned author and much known for her children's stories, and the 100 dresses is one of her very very famous writing. Okay, so some more detail we have added here. So let's continue with the introduction. As I have already told you that this lesson is in continuation with the previous chapter, and in this part the writer tells us a lesson of not to hurt anybody's feeling. Okay, and all the girls in the school made fun of Wanda, that was a Polish girl, हम जानते हैं, और उसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट शी लेफ्ट द स्कूल. दिस इज़ फ्रॉम दिस स्टोरी स्टार्ट. यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है. जो मिस मेसन है, उनको प्रिंसिपल ऑफिस से एक लेटर मिलता है, एक नोटिस मिलता है. और आपको पता है कि हमने लास्ट स्टोरी कहाँ पर लीव की थी, वेयर वांडा वॉज गोइंग टू बी एबसेंट फ्रॉम सम ऑफ द लास्ट डेज. ओके, एंड एवरीबडी नोबडी नोटिस्ड टिल शी वन द कॉन्टेस्ट. तब तक किसी ने नोटिस नहीं किया था, बट शी वॉज द विनर ऑफ दैट ड्राइंग कॉन्टेस्ट व्हेन शी डिपॉजिटेड 100 डिफरेंट लेविश वंडरफुल ड्राइंग्स. ओके, तो यहाँ पर वो नोटिस मिलता है, और वो नोटिस क्या है, एक वांडा के फादर मिस्टर पेट्रॉन्स्की का एक लेटर है मिस मेसन के नेम पर. ठीक है, और वो उसमें क्या बताते हैं कि नाउ माय डॉटर एंड हिज सन, बेटे का भी नाम दिया है. ठीक है, कि वो अब स्कूल नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम टू स्कूल एनी मोर. और वो उसमें एक दो लाइन और लिखते हैं कि नाउ दे विल नॉट
हियर एंडी हॉलर पॉलेक, ये एक टर्म यूज़ किया। आप देखना अपने फर्स्ट पेज पर ही है, मैं आपको दिखा भी दूंगी कि फर्स्ट पेज पर जो लेटर दिया है फादर ने, जो लिखा है मिस मेसन के नेम पर, उस लेटर में ये टर्म यूज़ किया गया है। और ये टर्म इसी चैप्टर से ही में बहुत फेमस हुआ। और इसका दिस पॉलेक वर्ड, दिस इज़ यूज्ड फॉर दिस इज़ अ काइंड ऑफ डेरोगेटरी टर्म। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डेरोगेटरी टर्म। डेरोगेटरी टर्म इज़ एनी कॉन्टेम्पचुअस टर्म, ठीक है, जिसको आप किसी को कॉन्टेम्पचुअसली यूज़ करते हो, किसी को टीज़ करने के लिए, परेशान करने के लिए, और जो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन कोट वन मोर एग्जाम्पल हेयर। आपने देखा होगा कि some time back the natives of South Africa or African people used to be called like Negroes or some other names, but by the law now nobody can use such kind of derogatory words for them. वो कोई भी उनके लिए यूज़ नहीं कर सकता। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ क्राइम। ओके, तो इसी तरीके से ये पॉलेक जो वर्ड है वो पॉलिश लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, उनके लिए एक मतलब उनको टीज़ करने के लिए, आप ये समझ सकते हो। कंटेम्पचुअस टर्म है ये, ठीक है। देन द फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस अरोज। today's video you have to listen very careful because I don't know how to use pen in this PPT and I'm not able, हो भी नहीं रहा है वो मेरे से यूज़, तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखें। All the girls in the school made fun of Wanda, a Polish girl. As a result, she left the school. Then the feeling of repentance aroused. Repentance का मतलब होता है पश्चाताप, पछतावा, among the student who teased Wanda. पैगी एंड मैडी इवन गो टू हर हाउस। वो दोनों लड़कियां उसके घर जाती हैं, लेकिन उनके घर जाने से पहले ही वो उस जगह को छोड़कर चले गए होते हैं। तो फिर वो एक लेटर लिखती हैं और उसमें दे राइट अ लेटर टू हर एक्सेप्टिंग देयर फॉल्ट। वो ट्राई करती हैं कि उसमें वो लेटर में लिखें, एक गिल्ट फीलिंग वाला लेटर लिखें, लेकिन वो लेटर एंड में एक फ्रेंडली लेटर में टर्न हो जाता है। मतलब इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम एज वेल टू show their negative or their faults or their mistakes publicly। तो लेकिन वो चाहती हैं ऐसा बहुत। वांडा सेंड्स अ लेटर टू मिस मेसन ऑन द ईव, और बाद में और वांडा एक लेटर अपनी टीचर को भेजती हैं। शी ग्रीट्स एवरीबडी मैरी क्रिसमस, और एंड में वो कैसे सबको मैरी क्रिसमस ग्रीट करती है। गिव देम द गिफ्ट्स ऑफ हर पेंटिंग्स, और जो पेंटिंग्स उसने वहाँ पर डिपॉजिट किए थे वो अपनी उन फ्रेंड्स को रखने के लिए अपने टीचर को बोलती है। लेट्स सी द स्टोरी थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड। लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। कैसे कैसे इस लेटर में क्या लिखा हुआ है देखो, मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ। राइट फ्रॉम 1, 2, 3, 4th line. It was from Wanda's father. Wanda's father had written that Wanda would not come to school anymore as they were moving to the big city. ठीक है, कि वो नए और बड़े शहर में जा रहे थे, मतलब वहाँ पर उन्हें इस तरीके का जो टॉर्चर फेस करना पड़ रहा था, वो दे डिड नॉट वांट टू फेस दैट एनी मोर एंड दे हैव शिफ्टेड टू सम अनदर बिग सिटीज़ वेयर नोबडी केयर्स फॉर एनीबडी एल्स। ठीक है, जहाँ दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि किस तरह का नेम है, ये ऑकवर्ड है प्रोनाउंसिएशन में, या ये नेटिव कहाँ के हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे और नोबडी मेक्स प्रैंक ऑन अदर्स on such kind of issues. Actually they were fed up with others behavior towards them. वो fed up हो चुके थे। In that city nobody would consider Wanda's name funny and laugh at her। ठीक है, कि कोई भी नहीं कहेगा कि वांडा का नेम वांडा पेट्रॉन्स की एक फ़नी नेम है या ये फ़नी साउंड करता है। तो इस वजह से उस लेटर में ये लिखा होता है। मिस मेसन्स एडवाइस, यस। अब मिस मेसन जब ये लेटर क्लास में पढ़ती हैं, सो एवरीबडी, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी बिकेम सो क्वाइट, सब एकदम शांत हो जाते हैं। एंड वांटेड टू लिसन टू द लेटर वेरी इंटेंटली, बहुत मतलब सबको क्यूरोसिटी होती है कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। और वो लेटर लिखने के बाद शी फेल्ट सो मच अपसेट, मिस मेसन वो बहुत अपसेट हो जाती हैं। शी डिड नॉट गेट एंग्री टू द क्लास, वो गुस्सा नहीं होती क्लास पर, बट शी बिकेम सो मच अपसेट, बहुत अपसेट हो जाती हैं। और अपसेट होने का मतलब क्या है, बिकॉज शी न्यू दैट दिस वॉज द बिहेवियर ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन टू प्रैंक
and such kind of things, but she hopes that all the misbehavior was part of normal childhood pranks. मतलब इसमें कोई बड़ी conspiracy या ऐसा कोई उनका purpose नहीं होगा, and hopes that kids will derive a lesson from Wanda's episode कि आगे कभी फ्यूचर में ऐसा ना हो, और वो ये एडवाइस करती हैं क्लास को कि द स्टूडेंट शुड बी वेरी रैशनल एंड नॉट टू हर्ट एनी वंस फीलिंग्स बिकॉज ऑफ देयर नेम्स और ओरिजिन. ठीक है, तो दिस इज मिस मेसन्स एडवाइस. मैडीज़ फीलिंग. अच्छा, मैडी, ये वैसे पैगी और मैडी दोनों ही मेन कैरेक्टर हैं, लेकिन आप देखिएगा कि पैगी से ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट हुआ है वांडा के वहाँ से छोड़ने का, या वो मैडी ने ज़्यादा उसको फील किया. और आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों, बिकॉज मैडी वॉज ऑल्सो बिलोंग टू सच काइंड ऑफ बैकड्रॉप. ठीक है, वो भी ऐसे ही बैकग्राउंड से बैकड्रॉप से बिलोंग करती थी. सो मैडी वॉज सो मच मैडी वॉज सो मच अफेक्टेड. ठीक है, वो शी felt very sad and let down by herself, and she has a very sick feelings in the bottom of her stomach. Sometimes she feels that her behavior was that of a coward, कि कितना cowardly उसने behavior किया. और वो ये भी सोचती है कि instead of being a mute spectator, कि वो चुपचाप जब खड़ी होकर ये सारी चीज़ें देखती थी, she should have protested the mental torture being administered to Wanda. ठीक है, मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि जो ये मेंटल टॉर्चर वांडा को दिया जा रहा था, इस तरीके से जो बिहेव बच्चे कर रहे थे, चाहे वो नोइंगली कर रहे थे या अननोइंगली, तो उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए था. सो दिस इज़ अबाउट द मैडीज फीलिंग. यू कैन गो थ्रू ऑल दीज आई हैव रिटन ओवर हियर. सॉरी फीलिंग. नेक्स्ट स्लाइड. आफ्टर द स्कूल वॉज ओवर, पैगी टोल्ड मैडी वॉक. पैगी एंड मैडी है ये, पैगी टोल्ड नहीं है, आप इसको रेक्टिफाई कर लें. पैगी एंड मैडी वॉक टूवर्ड्स वांडाज हाउस. ऑन द वे, और रास्ते में, पैगी एक्सप्लेन दैट शी हैड नेवर कॉल्ड वांडा फॉरनर. तो पैगी कहती है कि हमने कभी उसे फॉरनर नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने अब जब उन्हें एडवाइस किया तो अब वो अपने मिस्टेक्स को क्या कर रही हैं, रियलाइज़ कर रही हैं कि उन्होंने क्या कहा. और अपने आप को लेट डाउन होने से सेव करने के लिए पर्सन ऐसा कहता है कि मेरा तो ये पर्पस नहीं था, मैंने इस वजह से नहीं कहा था. She always thought that Wanda was a dumb girl and never imagined that she could ever sense the fun made of her. उन्हें तो लगता था कि वो एक डम गर्ल है और वो कभी नहीं समझ पाएगी कि ये जो फ़न उसके साथ किया जा रहा था. मैडी जस्ट वांटेड टू मीट वांडा, लेकिन मैडी का सिर्फ एक ही पर्पस था कि वो कैसे भी करके वांडा से उसके घर पर मिल लें एंड टेल हर दैट दे वर सॉरी फॉर देयर रूड ट्रीटमेंट, और वो अपने आप को गिल्ट फ्री कर पाएँ. ठीक है, शी वुड रिक्वेस्ट हर नॉट टू मूव अवे, और वो उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वहाँ से मूव ना करे. ठीक है, वहीं पर रह जाए.